crisis. With Govind Raju Swami, Bureau Report, Chikballapur, DD India. That's a wrap on News Night, but news continues here on DD India and DD News. You can catch all the latest updates on our social media, mobile and digital platforms. Thanks for watching. Bye-bye. कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। Hi, how are you? I'm doing good and fulfilling my duty of responsible citizen by staying at home to maintain social distancing. Yeah, me too. Actually, I have a few doubts about the Arogya Setu app. After installing this app, what all personal information are we required to share? When you are registering on the app, it will ask you for your name, age, gender, profession, and your last 30 days of travel history. It would also request for permission to keep mobile's Bluetooth and GPS location on. So, where does all this information go and get stored? The information submitted by you is encrypted and safely stored in the server. So, information about me like where I go, with whom I meet, is also being stored in the servers? No. If you come in contact with another person who has also installed the same app, this piece of information is captured and stored on your mobile itself. This information is not sent to the server. Okay, so this information does not go outside my phone. No, it does not. This information is only sent out of your mobile to the servers if you are found to be COVID positive. Understood. If I become COVID positive, then this information is used to inform everyone who knowingly or unknowingly came in contact with me so that they can also get themselves tested. That's correct. If you remain well, then even the government will not use this information. Your personal information will remain personal and secure within your mobile. Will information about me be stored permanently in mobile or servers? No, that's not the case. The captured information gets deleted from your mobile after 30 days and from the server after 45 days. In case you are found COVID positive, your information from the server will be deleted after 60 days. This is great. This app keeps my data safe and private, and I am safe as well. I'm convinced now that Arogya Setu app is the right way to fight Corona. चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है।
राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के साथ की राज्य में बाढ़ के चलते उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, बागजान तेल कुएं की स्थिति और कोरोना संकट पर भी की चर्चा। 6 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर की चर्चा। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कोविड-19 पर राहत की खबर। दुनिया के मुकाबले भारत में घट रही कोरोना मरीजों की मृत्यु दर। भारत में मृत्यु दर पहली बार 2.49%। 5 राज्यों में मृत्यु दर का आंकड़ा 0। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में भारत से 8 गुना अधिक संक्रमण, जबकि 14 गुना अधिक हुई मौतें। अब तक देश में 6,77,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,73,000 से ज्यादा। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 26,816। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 मरीज स्वस्थ। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम राज्य के दौरे पर। देश में सरकार का ध्यान कोविड-19 के मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है केंद्रित। राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर होगी उपलब्ध। दिल्ली में भारी बारिश। मौसम विभाग ने कहा 21 जुलाई तक राजधानी एनसीआर में बारिश की आशंका। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से न्यायालयों में हुई मामलों की सुनवाई। केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 7800, जबकि हाई कोर्ट में 1,75,000 और सब ऑडिटिंग कोर्ट्स में 7,34,000 मामलों की डिजिटल तरीके से की गई सुनवाई। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,00,000 से ज्यादा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कुल 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी इजाफा। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर हुई 6 करोड़। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उन राज्यों के बारे में बात करते हैं जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर राज्य में बाढ़ के बाद की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम के सीएम से बागजान तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए किए जा रहे उपायों और कोरोना महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी ली। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन के जरिए बात की। सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। तो साथ ही ये भी कहा है कि इस घड़ी में वो राज्य के लोगों के साथ हैं। और असम के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा कर कोविड-19 से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के कई राज्य इस मौसम में बाढ़ से जूझ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बाढ़ग्रस्त राज्यों में हो रहे राहत बचाव कार्यों पर।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में रविवार को बारिश हुई। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। जलभराव के बीच डीटीसी की बस लगभग पूरी डूब गई। वहीं कई जगहों पर जलभराव के बाद जाम भी लगा। इस दौरान कई इलाकों में तेज बहाव के कारण कुछ कच्चे मकान और झुग्गियां बह गईं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हुई। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ जहां पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, तो वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। असम में पिछले 2 से 3 दिन में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य के 24 जिलों के 2400 गांवों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। वहीं भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 110 हो गई है। उधर बिहार में सभी प्रमुख नदियों के उफान पर रहने से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से मुजफ्फरपुर का एक गांव जलमग्न हो गया है। राज्य के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 11,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। 7 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 2,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। लगभग 20,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 27 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं। अनेक परिवारों ने तटबंधों पर शरण ली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 20 व 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। एक तरह से देश पर दोहरी चुनौती कही जा सकती है। बाढ़ग्रस्त कई राज्य और उस पर से कोरोना महामारी का जिस तरह से संकट है, लेकिन इसमें भी कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो एक बेहतर उम्मीद का संकेत कह सकते हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं कि लगातार कोरोना महामारी से, इस संक्रमण से निपटने की जो तैयारी है, उसका कुछ असर सामने दिखाई दे रहा है, जिसे आप सकारात्मक असर के तौर पे कह सकते हैं, जिसमें कोविड-19 की रिकवरी दर करीब 63% हो गई है। हमने देखा है कि लगातार किस तरह से ये रिकवरी दर जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 की मृत्यु दर भी करीब 2.5% हो गई है। यही नहीं, जांच प्रयोगशालाएं लगातार बढ़ रही हैं और आज की तारीख में यह आंकड़ा 1264 का हो गया है। हर दिन कुल जांच 3,50,000 से अधिक की जा रही है, यानी कि हर दिन ये कोशिश हो रही है कि इन प्रयोगशालाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोविड जांच कराई जा सके और अगले 3 महीने में जांच क्षमता का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसे 10 लाख प्रतिदिन रखा गया है। यानी कि ये सबसे बड़ा और खासकर सरकार का लगातार ये कहना है, एक तरफ रिकवरी रेट, दूसरी तरफ घटता मृत्यु दर, और सरकार की सबसे ज्यादा तवज्जो इस पे है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो लोगों के। मृत्यु दर 2.5% से कम है। फिलहाल कोविड की मृत्यु दर 2.49% पर पहुंच गई है भारत में। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की सही देखभाल से मृत्यु दर में कमी आई है। ये वो कुछ कारण है जिसकी वजह से इस दर को हम हासिल कर पाए हैं और लगातार भारत इसमें एक गिरावट देख रहा है। बीमारी को फैलने से रोकने की प्रभावी कार्यनीति का भी एक ये असर है जो दिखाई दे रहा है। बड़े स्तर पर परीक्षण से भी मदद मिली है और उसने कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलने में या फिर लोगों को जल्दी से जल्दी इस संक्रमण का पता चलने के बाद उनके ठीक होने की जो रफ्तार है, उसका कारण यही है। उच्च जोखिम वाले लोगों पर लगातार नजर रखा भी जा रहा है और संक्रमण की शुरुआत में ही ये देखा जा रहा है। वहीं कोविड में भी राज्यों में भी कोविड मृत्यु दर में कमी देखी गई है। 29 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी कि राष्ट्रीय औसत तो 2.5 है, उससे कम है। इसमें भी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मृत्यु दर 0 है। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कही जा सकती है। हम उन राज्यों के को भी आपको बताएंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जहां 1% से कम है। ऐसे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कोविड मृत्यु दर 1% से कम है।
आइए एक नजर डालते हैं, नक्शे के जरिए भी उन राज्यों को देखते हैं कि कहां पर मृत्यु दर, कोविड मृत्यु दर शून्य है। वो खासकर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्य आप देख रहे हैं, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये वो 4 राज्य हैं जहां कोविड मृत्यु दर शून्य है और इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। यानी कि ये वो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जहां शून्य इस समय कोविड मृत्यु दर है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहां 1% से कम कोविड मृत्यु दर है। उसमें कई ऐसे राज्य हैं, अगर हम एकदम उत्तर से शुरू करें तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है 0.75 है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में 0.33 है। वहीं अगर इस तरफ आप आते हैं पूर्वोत्तर की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 0.46%, 0.48 है। साथ ही साथ मृत्यु दर अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना की बात करें तो ये वो राज्य हैं जहां लगातार वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनके तहत संक्रमण को रोका जा सके, संक्रमण का जल्द पता चल सके और उन्हें मरीजों को ठीक करके घर वापस भेजा जा सके। और यही वजह है कि भारत का हर दिन अगर हम कम से कम 20 दिन का अंतर को भी अगर देखें तो रिकवरी रेट में एक बेहतरी दिखाई दे रही है। ये वो राज्य हैं जहां पर मृत्यु दर 1% से ज्यादा है और 2.5 से कम है, जिसमें उत्तर प्रदेश 2.36% है, पुदुचेरी में 1.48% है, कर्नाटक में 2.08 है, तमिलनाडु में 1.45% है। वहीं राजस्थान में भी यह आंकड़ा बढ़ा हुआ कहा जा सकता है, अन्य राज्यों की तुलना में 1.94% है। तो ये वो राज्य आपने देखे, यानी कि पूरे भारत में हमने उन राज्यों को आपको दिखाया है जहां पर शून्य मृत्यु दर कोविड की है, जहां 1% से कम है और जहां पर 2.5% से कम राज्य हैं। आइए एक नजर ये भी डालते हैं कि दुनिया के तमाम वो मुल्क, उनकी तुलना भारत के साथ किन किन क्षेत्रों में भी की जा रही है और वो क्या आंकड़े बताते हैं। अगर हम जनसंख्या के लिहाज से सबसे पहले शुरू करें तो ये आप देख रहे हैं, जनसंख्या अगर आप देखें तो 1,34,11,00,000 सर्वाधिक प्रभावित देश जो हैं दुनिया के, उन देशों के नाम भी एक बार आपको हम बता देते हैं। ये अमेरिका, ब्राजील, रूस, पेरू, चिली, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ईरान, पाकिस्तान और स्पेन है। यानी कि उधर जो आपको पीला बार दिखाई दे रहा है वो 11 सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। इनकी जनसंख्या 1,34,00,00,000 है और भारत की जनसंख्या 1,38,00,00,000 है। ये वो सच्चाई है जो बताती है कि किस तरह से लगातार भारत जो तमाम कदम, एहतियाती कदम उठा रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए उन कदमों का ये असर दिखाई दे रहा है। इधर जनसंख्या घनत्व है, इन 11 देशों का सर्वाधिक जो प्रभावित देश हैं पूरी दुनिया में कोविड से, उनका 86 है घनत्व और 464 है, यानी भारत में घनत्व 5 गुना ज्यादा है। तो आप उन चुनौतियों को भी अंदाजा लगा सकते हैं जो चुनौतियां कोविड संक्रमण से निपटते समय भारत के सामने जनसंख्या और घनत्व को लेकर आ रही होंगी। कोरोना संक्रमण मामले अगर आप देखेंगे तो ये जो 11 देश है पूरे दुनिया में, इनमें 85,80,179 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में ये 10,38,716 है, यानी कि भारत से करीब 8 गुना ज्यादा मामले उन 11 देशों में आ रहे हैं जो जनसंख्या और घनत्व दोनों के लिहाज से भारत से बहुत कम है। वहीं कोरोना से हुई अगर मौतों का आप आंकड़ा देखेंगे विश्व में तो उसमें भी अगर आप देखेंगे ये जो 11 देश हैं दुनिया के, उनमें 3,78,142 मौतें हुई हैं अभी तक। वहीं अगर आप भारत का आंकड़ा देखते हैं तो 26,273 है। भारत से करीब 14 गुना ज्यादा मौतें इन 11 देशों में आप देख सकते हैं। तो ये वो कुछ आंकड़े हैं जो एक उम्मीद बंधाते हैं भारत में कि लगातार जो संक्रमण से निपटने की, इस महामारी से लड़ने की जो एक मुहिम भारत ने उठाई है उसके कुछ असर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ लगातार वैक्सीन को एक तरह से वैक्सीन की तरफ भी भारत प्रगति कर रहा है। ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं। एम्स में 100 लोगों के ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं, तो उस तरफ भी क्या प्रगति है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों से। लेकिन उससे पहले ये सच है कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है।
भारत में कोविड मृत्यु दर में गिरावट और बेहतर होता रिकवरी रेट इस उम्मीद को बनाए रखे है कि दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में कोविड के खिलाफ जंग में भारत बेहतर कर रहा है। कोविड महामारी की चपेट में दुनिया के 1.43 करोड़ लोग आ चुके हैं। ऐसे में भारत वो सभी प्रयास कर रहा है जिससे लोगों को महामारी से बचाया जा सके। केंद्र ने इसकी रोकथाम के लिए संक्रमित मरीजों की जल्द पहचान व उनकी जांच की सुविधा बढ़ा दी है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर घर सर्वे करना, समय पर कांटेक्ट ट्रेसिंग करना, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में बेहतर निगरानी रखना, बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराना भी बचाव के कदमों में शामिल है। वहीं अस्पतालों में मूलभूत जरूरी सुविधाओं के विस्तार और उनमें बढ़ोतरी करना भी बचाव और इलाज के लिए अच्छी पहल है। साथ ही ICMR ने पंजीकृत चिकित्सकों को किसी भी व्यक्ति की जांच कराने संबंधी अधिकार देकर एक और सकारात्मक कदम उठाया है। केंद्र व राज्य सरकारों को बेहतर चिकित्सा इंतजाम की बदौलत ही भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर तुलना में 2.5% से भी कम है। ये 2.49% दर्ज हुई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। केंद्र सरकार के प्रयासों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकारों ने भी टेस्टिंग बढ़ा दी है और अस्पतालों को जरूरत के मुताबिक तैयार भी किया है। कई राज्यों ने तो संवेदनशील लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिला और वैसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई संचारी या गैर संचारी बीमारी है या इलाज चल रहा है, उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली है। इस बड़ी पहल को हकीकत में बदलने के लिए तकनीक के साथ ही आशा सेविकाओं और ANM का सहयोग काफी सराहनीय रहा है, जिन्होंने एक बड़ी आबादी को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाई है। दूसरी ओर बिहार में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र का एक 3 सदस्यीय दल राज्य का दौरा कर उचित सलाह और सहायता मुहैया कराने में मदद करेगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में ये दल राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह भी देगा। प्रदेश में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक जन अभियान का भी शुभारंभ किया, जो महामारी के खिलाफ मजबूत हथियार भी है। उन्होंने एम्स और दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास से प्लाज्मा डोनेशन की भी शुरुआत की। इस बीच एम्स कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन का मानव परीक्षण करने की शुरुआत भी कर रहा है। ये परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से 55 आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा। दूसरी शर्त यह भी है कि वह कोविड-19 से भी संक्रमित नहीं होना चाहिए। इस होने वाले परीक्षण में दिल्ली NCR के लोग शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनके लिवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। ICMR के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शिरकत करने वाले लोगों पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी भी रखेंगे। इसमें स्वेच्छा से शिरकत करने के लिए 07428847499 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है या ctaims.covid19@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। यानी चौतरफा प्रयासों की बदौलत भारत दुनिया में कोविड-19 की रोकथाम और इलाज को लेकर एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नितेन सिंह के इनपुट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और इसी विषय पर आज हमारी चर्चा भी है। हमारा न्यूज नाइट का आज विशेष है कोविड रिकवरी रेट, भारत की नई उम्मीद। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK सेरीन जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर ILBS। डॉक्टर सेरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रंजन त्रिखा साहब जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं एनेस्थीसियोलॉजी क्रिटिकल केयर और चेयरमैन हैं क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप कोविड-19 टीम के। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्रिखा साहब आपके पास आना चाहेंगे और डॉक्टर त्रिखा जानना चाहेंगे कि ये रिकवरी रेट 63% सामने आया है, कोविड मृत्यु दर लगातार गिरावट उसमें देखा जा रहा है। इसको कितना बड़ा आप एक तरह से कितनी बड़ी उम्मीद मानते हैं, कितना बड़ा संकेत देखते हैं इस महामारी की जंग में? भारत को आप कहां देखते हैं इन दोनों आंकड़ों के लिहाज से? इन दोनों आंकड़ों के हिसाब से भारत इस जंग को काफ़ी हद तक जीत चुका है और जैसे कि आपने डाटा दिखाया है, भारत में डेथ रेट 2.49 है और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो 0 डेथ रेट है, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे 0 डेथ रेट है और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो 2.49 से भी कम डेथ रेट है।
ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारी सरकार ने ठीक टाइम पे जो रूल्स निकाले, ठीक टाइम पे जो प्रिकॉशंस ली, ठीक टाइम पे जो लॉकडाउन किया, जिस कारण हम बिल्कुल अपने तरीके से अस्पताल में बेड्स बढ़ा सके और इन मरीजों की देखभाल करने की सुविधा कर सके। वो सरकार के जो कदम उठाए गए थे बिल्कुल ठीक थे और उस कारण ही हमारा ये डेथ रेट इतना कम हुआ है। आपने एक और चीज़ बहुत अच्छी बताई है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बाकी कंट्रीज के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो गई है, जिस कारण हम ये इन्फेक्शन को फैलने से रोक पा रहे हैं। और बहुत ऐसी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में जो बाकी कंट्रीज के मुताबिक बड़ी हैं। ऐसी स्टेट्स में भी डेथ रेट कम है, इन्फेक्शन रेट कम है। तो ये सब कुछ बताता है कि हम लड़ाई में जीत की तरफ जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में ये और अच्छे होते जाएंगे, ये जो नंबर्स आ रहे हैं। हमें अभी ढीला नहीं पड़ना है, हमें अभी प्रिकॉशंस कम नहीं करनी है। ये देखा गया है कि जब थोड़े से रिपोर्ट्स अच्छी आ जाते हैं, लोग घूमना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी कम कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। ये हमें सरकार के साथ रहना है। जो सरकार हमें निर्देश देती है वो एक एवरेज सिटीजन को मानना चाहिए, क्योंकि हमें ये अभी जीतने के लिए पूरी तरह से अभी लंबी ये लड़ाई है। अभी आई कैन कॉल इट कि अभी हाफ वन बैटल है। इस पे ऐसे ही लगे रहना है, बिल्कुल नियम के मुताबिक अपनी जिंदगी बितानी है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। जी डॉक्टर सरीन, निश्चित रूप से ये आंकड़े ज़रूर एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जिन घरों, जिन परिवारों, जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हो रहा है, जिन घरों में किसी की जान चली जा रही है, उनको ये लगता होगा कि खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो कि दिखाई भी दे रहा है। आंकड़ों में ये दिख रहा है कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर सरीन, क्या आप कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, देश के लोगों को, कि इस समय की एहतियात मुख्य रूप से क्या होने चाहिए? जो लगातार हम एहतियात बरत रहे हैं वही, या अब से आने वाले अगले 2 महीने और ज्यादा परीक्षा के कहे जा सकते हैं और सख्ती से उन एहतियातों पर काम करने की जरूरत है? देखिए, एक तो हम लोग सोचा करते थे कि भाई लॉकडाउन 2 हफ्ते का है, फिर 2 हफ्ते का बढ़ा है तो अब ख़त्म हो जाएगा। पर हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाएगा। तो ये एक भ्रम है और हर स्टेट के अंदर, हर पार्ट ऑफ द कंट्री में ये एक वेव की तरह है। जैसे अब यहाँ दिल्ली में थोड़ा सा कम हो गया है और थोड़ी स्टेट्स में जहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं, पर दूसरी जगह नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इन्फेक्शन तो स्प्रेड हो रहा है और ये इन्फेक्शन अगर भारत में 30, 35, 40 हज़ार के लोग रोज़ अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी समझ में और लोगों की समझ में अंतर बना हुआ है। आप देखें कि कल सिर्फ जाके इतने महीनों, 7 महीनों के बाद अमेरिका का जो मेन सेंटर है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसने ये कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है। अमेरिका में इतने इन्फेक्शन, इतने लोग मर रहे हैं, पर उन्होंने नहीं कहा। भारत ने इसमें बहुत पहल करी। हमारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने, लीडर्स ने, सब ने कहा कि भाई हाँ, आप जो है मास्क पहनिए। पर मैं देख रहा हूँ अब थोड़ी बहुत ढिलाई होने लग गई है। लोग जा रहे हैं, जब फ़ोन आया तो उन्होंने मास्क उतार दिया, खाना खाया तो मास्क उतार दिया, मिलने गए, पार्टी में गए, मास्क उतार दिया। ये सबसे पहला नियम है। अगर शर्तिया आपको बचना है कि मेरे को कोरोना नहीं हो, तो एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पब्लिक में ज़रूर लगाएं। इसे N95 कहते हैं। लगभग 100 में से 95% ये आपका वायरस को अंदर जाने का रिस्क ख़त्म कर देता है। अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपने मास्क लगाया है तो दूसरे को जाने का उसके अंदर रिस्क ख़त्म हो जाता है, अनलेस कि उसके अंदर मास्क में कोई स्पेशल वाल्व, जिसे रेस्पिरेटर कहते हैं, वो लगाओ। तो नॉर्मल N95 से आप याद रखें कि अगर आप ऐसे इलाके में, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की भीड़ या एक इन्फेक्टेड अननोन एसिम्प्टोमेटिक से आपका जो संपर्क हो सकता है, तो ये मास्क ज़रूर पहने रखें। और ये एक श्योर वे है कि आपके इलाके में, रेड एरिया में जहाँ पे कि इन्फेक्शन हो रहा है, आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी से वैक्सीन में बहुत समय है। दूसरी बात,
एहतियात की जो लोगों को रखनी है कि वायरस जाता कैसे। वायरस सिर्फ 4 या 5 रास्तों से जाता है, मुंह से, नाक से, आँख से, कान से या किसी ऐसी झिल्ली वाले रास्ते से जहाँ से कि वायरस जैसे रेक्टम वगैरह से वहाँ से भी वायरस का प्रवेश होने की पॉसिबिलिटी, और कोई तरीका नहीं। तो आप सोचें कि हाँ भाई मेरी स्किन छू गई, मेरी बाह पर उसने छू दिया, उससे नहीं होगा, वायरस आपके शरीर में एंटर नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप किसी से मिले या ऐसी सरफेस में लिफ्ट है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, तो आप हाथ जरूर धोएं। तो दिन में जितनी बार आप हाथ धोएंगे, जरूरत नहीं है कि सैनिटाइजर ही लें, पैसे लगाएं, साधारण व्यक्ति सिर्फ हाथ धो और मुंह में, नाक में वो उंगली या गंदी चीजें ना लगाएं। तीसरा है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे कि एयर कंडीशनिंग सेंट्रल है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, मे भी दूरदर्शन है जी, वहां पर एयर चेंजेस, हवा बदलना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगे कि भाई दूसरा व्यक्ति आया है, वो हो सकता है इन्फेक्टेड, उसने मास्क नहीं पहना, उसको मास्क पहनाए और आप बाहर चले जाएं। बिल्कुल डॉक्टर सेरीन, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, तो मास्क जरूर पहने, हाथ लगातार धोएं। डॉक्टर त्रिखा, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आंकड़े आए हैं सामने, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और 5-4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जहां पे 0 कोविड मृत्यु दर है। तो ये जो फर्क है, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति इस समय खराब भी कही जा सकती है, कुछ बेहतर हो रही है, कुछ जगह पे खराब है। महाराष्ट्र है मसलन के तौर पे, दिल्ली की स्थिति अब से कुछ समय पहले तक एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब थी। अब कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ कंट्रोल्ड दिखाई दे रही है, लेकिन ये अंतर किस लिए है, क्या कारण मानते हैं? ये जो अंतर है हिंदुस्तान में, एक हमें देखना पड़ेगा, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रांत हैं, स्टेट्स हैं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं, वहाँ से लोग कम बाहर आके वापस जा रहे हैं, और वहाँ पे इससे पहले कि लोग ज़्यादा जा पाए, सरकारों ने ऐसा किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वहाँ लोगों को अवेयर कर दिया है। लोग समझ गए हैं कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ये इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं, और जो बाहर गए हैं अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको कुछ देर क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। ये उन्होंने जो प्रिकॉशंस उनको अवेयर कराया है स्टेट गवर्नमेंट ने एक एवरेज सिटीजन को, उससे ये बहुत हद तक ये कंट्रोल पे लाया गया है। और ये बड़ी बढ़िया बात है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक भी डेथ नहीं हुई है। ऐसे कि अब बाकी के स्टेट्स हैं जहाँ पे डेथ 2.49 जो हमारी नेशनल एवरेज है उससे कम है, वो स्टेट्स को भी कमेंट किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ठीक तरह से लागू किए हैं। और जो भी आदमी बाहर से आ रहा है उसका टेस्ट हो रहा है, या उसके कॉन्टैक्ट अगर वो पॉजिटिव आया तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। और ये जनता से ये चीज जनता के मन से हटाई जा रही है कि ये कोई स्टिग्मा है कि आपको कोरोना वायरस है। ऐसा नहीं है। सरकारों ने बताया है और बताना पड़ेगा सबको कि अगर किसी को कोरोना वायरस है वो जाके बताए लोगों को, वो जाके सब उस एरिया के लोगों को, उस बिल्डिंग के लोगों को बताए कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है और मैं सारी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अगर आप छुपाएंगे, जैसे ही आप छुपाएंगे ये और फैलेगी। तो ये हमें अब सबको बताना है, और वो स्टेट्स ने ये चीज देखी है। जैसे ही कोई बाहर से आदमी अंदर आता है, अभी कुछ दिन पहले मैं पंजाब गया था, वहां पे रास्ते में मुझे रोका गया, कहाँ जा रहे हैं, टेस्ट दिखाइए। ये चीजें बहुत खराब लगती हैं लोगों को, बट ये चीजें अगर स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको बुखार होगा तो हमें बताना है। इन चीजों से ही स्टेट्स के जो इन्फेक्शन रेट हैं और डेथ रेट्स हैं कम किए जाते हैं, और इन सबको फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर त्रिखा, और ये हम सब की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कोविड के इस दौर में, इस महामारी से लड़ते समय। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ध्यान रखने के साथ साथ समाज में जब बाहर निकल रहे हैं तो दूसरों की सेहत का ध्यान की जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमसे किसी तरह का संक्रमण ना फैले। डॉक्टर त्रिखा, एक तरफ घर घर सर्वे करना, कंटेनमेंट जोन बनाना, उनमें सख्ती करना, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना, ये तमाम चीजें चल रही हैं, इसका एक असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को इंतजार वैक्सीन का है। एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी राहत वैक्सीन के साथ है। एम्स में भी 100 लोगों की टेस्टिंग की जल्दी ही शुरुआत होने जा रही है। हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि वैक्सीन की दिशा में भारत किस तरह से प्रगति और कितनी प्रगति कर चुका है इस समय। देखिए, किसी भी बीमारी का वैक्सीन
बनाना और उसको ट्राई करना और एवरेज जनता के लिए निकालना सो दैट इतनी डोजेस बन जाएं, सबको लगाई जा सके, ये बहुत ही एक लॉन्ग डाउन प्रोसेस होता है। इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो तरह के वैक्सीन को अलाउ कर दिया है कि ये ह्यूमन फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में हो सके। जो पहली वैक्सीन है जो आईसीएमआर के साथ मिलके भारत बायोटेक ने बनाई है, उसमें कोई 350 या 60 मरीज लिए जाएंगे जो हेल्दी लोग हैं, जो आपने बताया था। उसमें से 100 मरीज एम्स के, मरीज नहीं, हेल्दी वॉलंटियर्स एम्स न्यू दिल्ली के होंगे और बाकी के एम्स पटना या पीजीआई रोहतक से होंगे। क्योंकि जब भी वैक्सीन ट्रायल होते हैं वो एक जगह पे नहीं होते हैं, वो